Hello students, hope you all are taking care of your health during these turbulent times. So today I'm back again with the second video on banking, and I hope you must have seen the first video on banking. I uploaded the first video on banking just 2 days before on the topic fundamentals of banking, and today I have created the second video on banking on the topic sources of funds for banks. Now again, this video would be useful for all the undergraduate and postgraduate students who are pursuing BCom, MCom, BBA or MBA courses, and all those students who are preparing themselves for the competitive exams. Let me tell you, banking actually is a complete subject in the curriculum or in the syllabus of undergraduate and postgraduate courses, that is BCom, MCom, BBA and MBA. So let's begin. Day before yesterday, the video which I had created on fundamentals of banking, I had told you that banks create lot of loans, different type of loans, and they provide different kind of credit to the borrowers. Now, they also invest money in different kind of securities. The question should arise कि इतने लोन्स देने के लिए, इतना क्रेडिट जनरेट करने के लिए और इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक्स के पास पैसा आता कहाँ से है? हाउ डज द बैंक ऑब्टेन दिस मनी? तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द बैंक्स? So today we are going to discuss all these sources from where the banks obtain money. हम आज वो सारी sources जहाँ से banks के पास funds आते हैं या money आती है, उन सारे sources के बारे में हम आज बात करेंगे. Now, the sources from where the banks obtain funds are actually divided into two parts. Banks' own funds, which are also called as owners' funds, and borrowed funds. ये जो बैंक्स ओन फंड्स हैं या ओनर्स फंड्स हैं, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड और कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स: पेड अप कैपिटल, रिजर्व फंड and undistributed profit, or we call it as retained earnings. So now I'm going to discuss all these with you in detail one by one. सबसे पहले I'm going to begin with banks own funds, जिसको मैंने अभी आपको बताया is also known as owners capital. As the name suggests, नाम से ही पता चल रहा है, वो सारा पैसा, वो सारा मनी, वो सारा फंड्स जो शेयर होल्डर्स लेकर आएंगे जब वो बैंकिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे, या ओनर्स लेकर आएंगे जब वो बैंकिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स कैपिटल. हम इस पैसे को, इन फंड्स को पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो ओनर्स फंड है, ये जो बैंक्स ओन फंड्स हैं या ओनर्स फंड्स, this is the amount with which the banking company is going to register itself. इसीलिए हम इस अमाउंट को, इस इनिशियल अमाउंट को नॉमिनल अमाउंट या ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं. We also have to understand मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लॉज है, उसमें we need to mention the maximum amount of authorized capital that a company is entitled to raise. हर कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, सो इट इज गिवन द लिमिट कि वो कितने ऑथराइज्ड कैपिटल से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकती है. तो वो जो मैक्सिमम लिमिट है ऑथराइज्ड कैपिटल की, जिससे आप अपने बैंकिंग कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, दैट इज मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. रिमेंबर वन मोर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. जनरली बैंक्स अपनी ये ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे रेज करते हैं, वो पैसा या ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल लेकर कैसे आते हैं? दे इशू fully paid up capital, fully paid up shares which are ordinary shares, not the special shares. वो स्टार्टिंग में ऑथराइज्ड कैपिटल रेज करने के लिए बैंक्स fully paid up ordinary shares इशू करते हैं. तो ये तो बात की हमने ओनर्स फंड की, दैट इज बैंक्स ओन फंड्स की. अब एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि जो बैंक्स ओन फंड्स हैं या ओनर्स फंड है, उनके तीन पार्ट्स हैं: पेड अप कैपिटल, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज रिजर्व फंड. नाउ अंडरस्टैंड, रिजर्व फंड अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द कमर्शियल बैंक. सबसे पहले तो ये समझेंगे रिजर्व फंड
मेंटेन करना भी हर कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी है। जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है, it has made it mandatory, it has made it binding for all the commercial bank that they have to obligatory maintain the reserve fund. तो रिजर्व फंड मेंटेन करना किसी कमर्शियल के लिए अब ऑप्शनल नहीं है। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के हिसाब से हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को रिजर्व फंड मेंटेन करना कंपलसरी है। नाउ आई वांट टू हाईलाइट वन मोर थिंग ओवर हियर। जब भी कोई कमर्शियल बैंक डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करते समय वो अपने सारे प्रॉफिट्स एज अ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता। वो प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन रिटेन कर लेता है। सर्टेन प्रॉफिट, सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक and that portion of profit is transferred to the reserve fund. Obviously ये जो जितना भी अमाउंट है, जितना भी प्रॉफिट का पोर्शन है जो रिजर्व फंड में ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अगर उस बैंक का लिक्विडेशन होता है, उस लिक्विडेशन की सिचुएशन में शेयर होल्डर्स को उनकी ओरिजिनल कैपिटल, दैट इज ओनर्स कैपिटल भी मिलेगी along with the reserve fund in which they have maintained their funds. We must understand कि बैंक अपने अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, कंटिंजेंसीज को मीट करने के लिए और अनफोर्सीन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए ये रिजर्व फंड्स मेंटेन करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, दैट इज प्रॉफिट। वी अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, कोई भी बैंक it is a business firm, क्योंकि it is a business firm, that means it is operating to earn profit or to maximize its profit. प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक्स बहुत अलग अलग तरीके की, बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज और बहुत वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ सर्विसेज हैं विच आर इन पेड फॉर्म एंड कुछ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट, right? Now what we need to understand over here is that profits actually signify what? The credit balance of the profit and loss account. अब बैंक्स हर साल प्रॉफिट अर्न करते हैं एंड प्रॉफिट अर्न करते करते दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग दोज प्रॉफिट्स। बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स के प्रॉफिट जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ही उनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ती चली जाएगी और उतनी ही उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये तो हमने बात की ऑल थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ओनर्स फंड्स, है ना। ओनर्स फंड, ओनर्स के तरफ से कहाँ से फंड्स जनरेट होते हैं, फंड्स, पैसा कहाँ से आता है बैंक्स के पास, ये बात की। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू पीपल अबाउट बोरोड फंड्स। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये वो फंड है, ये वो पैसा है जो बैंक बोरो कर रहा है। कहाँ से बोरो कर रहा है, किससे बोरो कर रहा है, दैट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिफोर दैट, फर्स्ट अंडरस्टैंड अगेन, borrowed funds is a very very important source of fund for banks, banking business, right? Generally borrowed funds कहाँ से आते हैं? Banks borrows funds किससे? पब्लिक से। पब्लिक जितना भी पैसा डिपॉजिट करती है वो डिपॉजिट becomes the borrowings of the bank. पब्लिक बहुत अलग अलग अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट करती है। करंट अकाउंट which is also known as demand account, savings account, time account या FD account. So these are the three accounts, recurring deposit account. So there are different kind of accounts in which the public deposits its money. ये जो deposits हैं, these are the deposits which are actually borrowed by the bank. तो ये बैंक के लिए borrowed funds है. That is why whatever money is deposited by the depositors, by the customers to the bank, वो बैंक के लाइबिलिटी, बैंक की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। सो अगेन borrowing funds is a very important source of funds for the banks. Moving ahead, now let us understand one more thing which I want you people to understand. जैसे अभी आपने बात की, पब्लिक डिपॉजिट्स या borrowed funds एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स है बैंक्स के लिए। ओवर द टाइम लोगों में लिटरेसी बढ़ने की वजह से, अवेयरनेस बढ़ने की वजह से, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स चेंज होने की वजह से एंड बिजनेस ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से,
the money deposited with the banks is constantly increasing. जितना पैसा, जितना वॉल्यूम ऑफ मनी बैंक्स के पास जमा होता है, डिपॉजिट होता है, वो हर साल और बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है. बैंक्स के पास डिपॉजिट जितना ज्यादा आएगा, बैंक्स लोन और क्रेडिट उतना ज्यादा जनरेट करेंगे. बैंक जब लोन और क्रेडिट उतना ज्यादा जनरेट करेंगे तो बैंक को इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलेगा. बैंक्स को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो बैंक्स के पास प्रॉफिट्स ज्यादा आएगा. प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट ज्यादा होगा तो बैंक्स की वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, जिससे बैंक्स की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी. अगेन there is one more important source of funds or income for the bank, that is interest bearing loans. banks बहुत अलग अलग तरीके के interest bearing loans पब्लिक को ऑफर करता है, जिसपे बोरोवर जो है इंटरेस्ट पे करते हैं और वो इंटरेस्ट बिकम्स द इनकम ऑफ द बैंक्स. चलो आई विल जस्ट मूव अहेड. नाउ एज वी वर डिस्कसिंग जस्ट नाउ, जो मैंने अभी आपसे बात की कि बैंक्स तीन तरीके के डिपॉजिट्स, तीन तरीके के अकाउंट्स या चार तरीके के अकाउंट्स के डिपॉजिट से पब्लिक से पैसा लेते हैं. करंट अकाउंट यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग्स डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स, एंड देन रिकरिंग डिपॉजिट्स. Now, one thing we also need to understand in borrowed funds, sometimes in case of emergency or in case of contingency, बहुत emergency situation में या बहुत contingencies में बैंक सेंट्रल बैंक से भी लोन्स ले सकते हैं. लेकिन बैंक, कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से रेगुलर बेसिस पर लोन्स नहीं ले सकते. कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से सिर्फ बहुत इमरजेंसी या कंटिजेंसी में ही लोन ले सकते हैं. एक लास्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बैंक्स के पास फंड्स रेज करने के लिए, फंड्स लाने के लिए, दैट बैंक्स कैन इशू बॉन्ड्स. वो अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स इशू कर दे, वो अलग अलग तरीके के डिबेंचर्स इशू कर दे, वो अलग अलग तरीके के कैश सर्टिफिकेट्स इशू कर दे. सो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज of funds that a bank has. तो please understand one thing very very clearly कि बैंक ओनर्स फंड्स भी से भी फंड्स रेज करता है और बोरोड फंड से भी फंड रेज करता है, और उन फंड्स को फिर या तो वो इन्वेस्ट करता है और या फिर उनसे बहुत अलग अलग तरीके के क्रेडिट या लोन जनरेट कर रहा है. That's all. It was actually a very small video, and I am going to come up with the next video in 1 or 2 days in which I am going to talk about different type of banks. अलग अलग बैंक की कैटेगरीज क्या है, कितने अलग अलग तरीके के बैंक्स, that I am going to come with you. Thank you.